بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما الرحیق المختوم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے حوالے سے آج ہم جانیں گے حدیبیہ کا سمجھوتا۔ بدیل بن ورقہ کی مدھیستھ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسپشٹ ہو چکے تو بدیل بن ورقہ خزاعی اپنے قبیلہ خزاعہ کے کچھ لوگوں کے ساتھ حاضر ہوا۔ تہامہ کے نواسیوں میں یہی قبیلہ خزاعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہتیشی تھا۔ بدیل نے کہا، میں کعب بن لوئی کو دیکھ کر آ رہا ہوں کہ وہ حدیبیہ کے کافی پانی پر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ عورتیں اور بچے بھی ہیں، وہ آپ سے لڑنے اور آپ کو بیت اللہ سے روکنے کا طے کیے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم کسی سے لڑنے نہیں آئے ہیں، قریش کو لڑائیوں نے توڑ ڈالا ہے اور بہت نقصان پہنچایا ہے، اس لیے اگر وہ چاہے تو ان سے ایک مدت طے کر لوں اور وہ میرے اور لوگوں کے بیچ سے ہٹ جائے، اور اگر وہ چاہے تو جس چیز میں لوگ داخل ہوئے ہیں اس میں وہ بھی داخل ہو جائے، ورنہ ان کو راحت تو حاصل ہی رہے گی، اور اگر انہیں لڑائی کے سوا کچھ منظور نہیں تو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اپنے دین کے معاملے میں ان سے اس وقت تک لڑتا رہوں گا جب تک کہ میری گردن الگ نہ ہو جائے یا جب تک اللہ اپنا فیصلہ لاگو نہ کر دے۔ بدیل نے کہا، آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں میں اسے قریش تک پہنچا دوں گا۔ اس کے بعد وہ قریش کے پاس پہنچا اور بولا، میں ان صاحب کے پاس سے آ رہا ہوں، میں نے ان سے ایک بات سنی ہے، اگر چاہو تو پیش کر دوں۔ اس پر مورخوں نے کہا، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، تم ہم سے ان کی کوئی بات چیت کرو۔ لیکن جو لوگ سوجھ بوجھ رکھتے تھے انہوں نے کہا، لاؤ سناؤ، تم نے کیا سنا ہے؟ بدیل نے کہا، میں نے انہیں یہ اور یہ بات کہتے سنا ہے۔ اس پر قریش نے مخرز بن حفص کو بھیجا۔ اسے دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بدعہد آدمی ہے۔ چنانچہ جب اس نے آپ کے پاس آ کر باتیں کی تو آپ نے اس سے وہی بات کہی جو بدیل اور اس کے ساتھیوں سے کہی تھی۔ اس نے واپس پلٹ کر قریش کو پوری بات بتا دی۔ قریش کے دودت۔ اس کے بعد حسیل بن علقمہ نامی بنو کنانہ کے ایک آدمی نے کہا، مجھے ان کے پاس جانے دو۔ لوگوں نے کہا، جاؤ۔ جب وہ آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، یہ فلاں آدمی ہے، یہ ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہے جو قربانی کے جانوروں کا بہت آدر کرتے ہیں، اس لیے جانوروں کو کھڑا کر دو۔ صحابہ نے جانوروں کو کھڑا کر دیا اور خود بھی لبیک پکارتے ہوئے اس کا سواگت کیا۔ اس ویکتی نے یہ استھتی دیکھی تو کہا، سبحان اللہ، ان لوگوں کو بیت اللہ سے روکنا کدابی مناسب نہیں، اور وہیں سے اپنے ساتھیوں کے پاس واپس پلٹ گیا اور بولا، میں نے قربانی کے جانور دیکھے ہیں جن کے گلوں میں کلادے بندھن ہیں اور جن کی کوہنی چیری ہوئی ہے، اس لیے میں مناسب نہیں سمجھتا کہ انہیں بیت اللہ سے روکا جائے۔ اس پر قریش اور اس ویکتی میں کچھ ایسی باتیں ہوئی کہ وہ تاؤ میں آ گیا۔ اس موقع پر عروہ بن مسعود ثقفی نے ہستاکشیپ کیا اور بولا، اس ویکتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے سامنے
एक अच्छा प्रस्ताव रखा है, इसलिए उसे कबूल कर लो और मुझे उनके पास जाने दो। लोगों ने कहा, जाओ। चुनाचे वह आपके पास हाजिर हुआ और बातें शुरू की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे भी वही बात कही जो बुदैल से कही थी। इस पर उर्वा ने कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह बताइए कि अगर आपने किसी कौम का सफाया भी कर दिया तो क्या अपने आप से पहले किसी अरब के बारे में सुना है कि उसने अपनी कौम का सफाया कर दिया हो? और अगर दूसरी स्थिति हुई तो अल्लाह की कसम, मैं ऐसे चेहरे और ऐसे गुंडे लोगों को देख रहा हूँ जो इसी काबिल है कि आपको छोड़कर भाग जाए। इस पर हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर भागेंगे। उर्वा ने कहा, यह कौन है? लोगों ने कहा, अबू बकर। इस पर हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को संबोधित करके कहा, देखो, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर ऐसी बात ना होती कि तुमने मुझ पर एक एहसान किया था और मैंने उसका बदला नहीं दिया है, तो मैं यकीनन तुम्हारी इस बात का जवाब देता। इसके बाद उर्वा फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातें करने लगा। वह जब बातें करता तो आपकी दाढ़ी पकड़ लेता। मुगीरा बिन शोबा रज़ियल्लाहु अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ही खड़े थे। हाथ में तलवार थी और सर पर खूद। उर्वा जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी पर हाथ बढ़ाता तो वह तलवार के मुड़ से उसके हाथ पर मारते और कहते कि अपना हाथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी से परे रख। आखिर उर्वा ने अपना सर उठाया और बोला, यह कौन है? लोगों ने कहा, मुगीरा बिन शोबा है। इस पर उसने कहा, ओ बदअहद, क्या मैं तेरी बदअहदी के सिलसिले में दौड़ धूप नहीं कर रहा हूँ? घटना इस तरह घटी थी कि अज्ञानता काल में हज़रत मुगीरा कुछ लोगों के साथ थे, फिर उन्हें कत्ल करके उनका माल ले भागे थे और आकर मुसलमान हो गए थे। इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मैं इस्लाम तो कबूल कर लेता हूँ, लेकिन माल से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं। इस मामले में उर्वा के दौड़ धूप की वजह यह थी कि हज़रत मुगीरा रज़ियल्लाहु अन्हु उसके भतीजे थे। इसके बाद उर्वा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा किराम के गहरे ताल्लुक़ और उनकी श्रद्धा को देखने लगे। फिर आपने साथियों के पास वापस आया और बोला, ऐ कौम, अल्लाह की कसम, मैं कैसर व किसरा और नजाशी जैसे बादशाहों के पास जा चुका हूँ। अल्लाह की कसम, मैंने किसी बादशाह को नहीं देखा कि उसके साथी उसका इतना आदर करते हो जितना मोहम्मद के साथी मोहम्मद का आदर करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह की कसम, वह खकार भी थूकते थे तो किसी न किसी आदमी के हाथ पर पड़ता था और वह व्यक्ति उसे अपने चेहरे और जिस्म पर मल लेता था, और जब वह कोई हुक्म देते थे तो उसे पूरा करने के लिए सब दौड़ पड़ते थे, और जब वज़ू करते थे तो मालूम होता था कि उनके वज़ू के पानी के लिए लोग लड़ पड़ेंगे, और जब कोई बात बोलते थे तो सब अपनी आवाज़ें पस्त कर लेते थे और अति आदर की वजह से उन्हें भरपूर नज़र से ना देखते थे। और उन्होंने तुम पर एक अच्छा प्रस्ताव पेश किया है, इसलिए उसे मान लो। वही है जिसने उनके हाथ तुमसे रोके। जब कुरैश के जोशीले और लड़ने भिड़ने वाले नौजवानों ने देखा कि उसके बड़े लोग समझौता करना चाहते हैं, तो उन्होंने समझौते में रुकावट डालने का प्रोग्राम बनाया और यह तय किया कि रात में
यहाँ से निकलकर चुपके से मुसलमानों के कैंप में घुस जाए और ऐसा हंगामा मचाए कि लड़ाई की आग भड़क उठे। फिर उन्होंने इस प्रोग्राम को लागू करने के लिए अमली कदम भी उठाया। चुनाचे रात के अंधेरे में 70 या 80 नौजवानों ने जबले तनीम से उतरकर मुसलमानों के कैंप में चुपके से घुसने की कोशिश की, लेकिन इस्लामी पहरेदारों के कमांडर मोहम्मद बिन मसलमा ने इन सब को गिरफ्तार कर लिया। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझौते के लिए इन सब को माफ़ करते हुए आज़ाद कर दिया। इसी के बारे में अल्लाह का यह इरशाद आया, वही है जिसने बतने मक्का में उनके हाथ तुमसे रोके और तुम्हारे हाथ उनसे रोके, इसके बाद कि तुमको उन पर काबू दे चुका था। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु दूत बनकर भेजे गए। आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा कि एक दूत रवाना फरमाया जो कुरैश के सामने सविस्तार आपके ताज़ा सफ़र के उद्देश्य को स्पष्ट कर दे। इस काम के लिए आपने हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु को बुलाया, लेकिन उन्होंने यह कहते हुए विवशता दिखाई कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तुझे कष्ट दिया गया तो मक्का में बनी काब का एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं जो मेरे समर्थ में बिगड़ सकता हो। आप हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान को भेज दे। उनका कुंबा कबीला मक्का में ही है, वह आपका पैगाम अच्छी तरह पहुंचा देंगे। आपने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को बुलाया और कुरैश के पास रवानगी का हुक्म देते हुए फरमाया, इन्हें बतला दो कि हम लड़ने नहीं आए हैं, उम्रा करने आए हैं। इन्हें इस्लाम की दावत भी दो। आपने हज़रत उस्मान को यह हुक्म भी दिया कि वह मक्का में ईमान वालों मर्दों और औरतों के पास जाकर उन्हें विजय की शुभ सूचना सुना दे और यह बतला दे कि अल्लाह अब अपने दीन को मक्का में ज़ाहिर व गालिब करने वाला है, यहाँ तक कि ईमान की वजह से किसी को यहाँ छिपे रहने की ज़रूरत ना होगी। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु आपका पैगाम लेकर रवाना हुए। बल्दहा नामी जगह पर कुरैश के पास से गुजरे तो उन्होंने पूछा, कहाँ का इरादा है? फरमाया, मुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह पैगाम देकर भेजा है। कुरैश ने कहा, हमने आपकी बात सुन ली, आप अपने काम पर जाइए। इधर सईद बिन आस ने उठकर हज़रत उस्मान को धन्यवाद दिया और अपने घोड़े पर जीन कसकर आपको सवार किया और साथ बिठाकर अपनी पनाह में मक्का ले गए। वहाँ जाकर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने कुरैश के सरदारों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का संदेश सुनाया। तो कुरैश ने कहा कि आप बैतुल्लाह का तवाफ़ कर ले, मगर आपने इसे ठुकरा दिया और यह गवारा ना किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवाफ़ करने से पहले खुद तवाफ़ कर ले। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत की अफ़वाह और बैत रिज़वान, इसके बारे में हम कल जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।